Hi friends, a very good evening to you and a warm welcome on madhvisluxury.co. I must tell you guys that the way the show is going unending, it seems like anybody who's a somebody in Delhi is going to be here on the show for sure, because anybody who's achieved and has done really great are going to be a part of the show. And as I say, it's going endless. So let's all welcome today Luxury Meets director, author, artist Rama Pandeyji. So let's all welcome Rama Pandeyji on the show. नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ. आप मेरा क्या स्वागत करेंगे? आई लव माई ऑडियंस. दे आर माई जिगर का टुकड़ा. सो दे आर ऑलवेज सिटिंग हियर. And I always welcome them. I'm very happy, Madhvi, that you gave me chance in your very very vibrant show. A couple of nice artists have come in, and I'm glad that तुम्हारी निगाहें करम हम पर भी पड़ी. तो we start. And a good evening to everybody and warm welcome Rama Pandeyji on madhvisluxury.co. And thoda sa briefly, I would like to tell the audience about Ramaji. So Ramaji is at a very early age has been a woman. She has at a very early age ambassador of India in 1971 and a roaming cultural ambassador. She has been a woman crusader trying to preserve Indian culture and heritage, and she's champion in making films on issues to youth and women, which especially help the masses to get solutions on social causes. She's well-known face in the media as a writer, folk artist, poet, actor, director, producer, etc. Written numerous books and poems on various subjects. Few have been pictured as well. Her collection of poetry, Gohar, has been launched at the House of Lords in London, UK. She's recipient of many prestigious awards, and also Bharat Gaurav Award for Film and Theatre Personality. So it's a real honor for me to have Ramaji here today with us. So Ramaji, आज हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी और आपकी स्टोरी कि ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और आप कैसे you became the director, author, artist and a well-known face in the media. देखो, I am honored that you have given so many chapters of my life in one go, in one breath, which takes whole life to do. Yes, it's a long journey. When I say long, I don't mean the age. I mean long in terms of efforts. The efforts have been put in to become what I have become, and what I will keep on becoming till my last breath, God willing, that I will go walking and taking applause from the audience, from all of you. So I desire. I would say that it's a very interesting, very heartening story. I belong to a Brahmin family. We were 7 girls, and my brothers, who are now world famous names, were the last ones to arrive. And we came from a background. We were born and brought up in Rajasthan, where women had no existence. उनका वजूद कोई था ही नहीं. मतलब उनका काम था सुंदर लगना, और वैसे ही जवान हो जाना, कुछ झूलना, कुछ मेहंदी लगाना, कुछ चूड़ी लगाना, और समझना कि जिंदगी का आखिरी हासिल यही है कि आपकी शादी हो जाए और आप एक घर की हुकूमतों से हटकर दूसरे घर की हुकूमतों में दाखिल हो जाए. फिर आप जो वो घर कहे, आपका पति जो कहे, उसके हिसाब से सजना संवरना, और फिर उसके बाद जब आपके बाल बच्चे बड़े हो जाए तो उनके हिसाब से. So this used to be aristocratic family I have seen in my life in Rajasthan. Rajputs especially, or the big Banyas by caste who were rich enough, were always had this kind of a system where the girls were supposed to be only girls and were loved very much, but
आजादी के नाम पर उनके लिए आसमान नहीं था, बाकी सब कुछ था, चूड़ी गहने हंसना बोलना सब, लेकिन दरवाजे के बाहर का आंगन आपके लिए नहीं था, दरवाजे के अंदर था। ऐसे सिस्टम से हम निकल करके और कुछ बन पाए, वो बहुत बड़ी बात है। और वो माता सरस्वती का आशीर्वाद और मेरी माँ की हिम्मत और मेहनत, कि उसको ये हमेशा से पता था कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है और लड़कियों को पढ़ाने के अलावा भी कुछ कलाएं बनने देना जरूरी है। सो वी आर, एंड बीइंग ब्राह्मण्स, वी वर वेरी मच इनटू द रीडिंग बुक्स और राइटिंग थिंग्स। ऑल ऑफ अस, all 9 of us are capable of writing and have written many books. तो I would say कि कुछ तो डीएनए में था मेरे, और कुछ था जो मुझे अंदर से एक आग लगा के ऊपर वाले ने भेजा था। मेरे मुंह में माइक रख दिया था, आंख में कैमरा रख दिया था, दिल में एक छोटी सी चिंगारी लगा दी थी कि जा आग लगा दुनिया में। तो मैंने वो किया। I was very talkative, Madhuri, like you can see now. So in class 6, I'll say actual journey of mine. Till class 6, I was a bacha wandering in the world without knowing the magical word, without knowing दुख क्या है, सुख क्या है, गम क्या है। 6 क्लास तक तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं था, मैं सिर्फ पंख थे मेरे और मैं उड़ रही थी। छठी क्लास में मैं बहुत बोलती थी, तो one of my teachers noticed that and she decided to put me in front of mic, and that was the day I spoke one debate और मुझे तो नशा चढ़ गया माइक का। So I never ever in my life, I repeat, I Rama Pandey never ever in my life lost a debate nationally, internationally, schools, college, university, even in various meetings. I always stood first, never even second. Wonderful. Never even a second. So that was a great training of going in front of mic, and mic आते ही मुझे लगता था मैं लोगों के दिलों में उतर गई और मैं महाराजा हो गई, मुझे कोई ताकत है। Now I would make you all laugh. एक बहुत अच्छी कृष्ण चंद्र की एक कविता थी, I think he was the one. उसमें ये था कि दुनिया में देखो कितने गधे हैं, और बाकी लाइनें नहीं कह करके सिर्फ अपने मतलब की लाइन कहूंगी। जो खेतों में खाए वो नकली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। तो घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो, आजकल के राजनेता यही कर रहे हैं। तो माइक ऐसे नशा है माधवी, उसके सामने से हटना बहुत मुश्किल काम। आपको एक लगता है कि यू हैव गॉट अ पावर, इसीलिए लोग एंडलेसली बोलते हैं, बट मैंने उस पावर को अच्छी तरह से कन्वर्ट किया। बहुत मुझे ज्ञान आया। देयर वर मैनी सब्जेक्ट्स जिस पे आपने डिबेट बोली, हर सब्जेक्ट पे चाहे आपको बड़े मदद करते थे। आई हैड गुरु रामजी लाल जांगिड़, who was the chief of Delhi Mass Communication. He became the Director General of Delhi Mass Communication. कितना उन्होंने मुझे सिखाया वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। छठी 6th 7th ग्रेड में व्हाट वुड यू नो अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आजकल के एंकर्स को तक को नहीं पता कि व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ची करके चीखते हैं, लेकिन हमको वो बाकायदा पढ़ाई जाती थी। एंड एट अ वेरी अर्ली स्टेज आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, I started learning about the language, and मजा आया हिंदी बोल के। I'm basically mainly a Hindi speaker, came from a Hindi medium school, लेकिन now I'm talking to you in English. This is all because our education was solid, absolute solid. Our English, which is not compulsory only, not the choice subject, उससे हमने जो सीखा उससे हमने दुनिया चला ली, दुनिया घूम ली। More than the 60 countries I have traveled, but and worked in many countries. ये सब हुआ because I wanted to. I wanted to know the word. I wanted to talk to the word. I would
put in one word what you wanted to do, what would you like to do, is that I would like इंसान से इंसान का रिश्ता, any communication medium. That is why I started writing. I started making camera films. I started acting in films. When I say acting in films, I by no means mean that I was a Bollywood film actor. Never had a. I had many chances. I signed 3 contracts. One with one film was done by Rakhi Guljar, but my parents were of the opinion कि ये काम अगर शादीशुदी हो गई और हस्बैंड आगे बढ़ाता हो तो कर लो, हम हमारे 7 लड़की हैं, तो बॉलीवुड जाओगी तो बाकी कहाँ जाए. I'm glad I listened to them क्योंकि now I can do my own Bollywood film. I do my so many films. I've done about 50-60 short films. I've done 5-6 long films. Now I am my Malik, my own Malik, which is what life has taught me. And from debate, I became very good in moon acting, and I was very good in mimicry. So I used to always nikalo nakal. So then they started putting me in moon acting. So I'll say, तुमको सुनो तांगे की आवाज. I used to go like, and we used to do like that, and we had कुत्ते की आवाज करते करते वो थिएटर उसमें आना शुरू हो गया. Then my school was my first guru. My school knew that I'm at a bomb. My school gave me every possibility to become Rama Pandey. जहां उनको जगह मिली उन्होंने मुझे आगे किया और मैंने स्कूल को सैकड़ों ट्रॉफी जीत के लाके दी. एंड हमारा स्कूल जो है माधवी, वो राजस्थान का इकलौता ऐसा स्कूल है जिसको अब 150 साल हो जाएंगे. तो when it was 100 years of my school, Dr. Zakir Hussain was president of India. He came to celebrate that day because the first women's school, girls school I should say, the name was Maharaja Multipurpose Girls Higher Secondary School, and it is in a heritage building even today. Lovely heritage building. So I used to feel like a Maharani. And I was treated like a Maharani. So जहाँ भी जाए, so in my life because थोड़ी दिखने में ठीक ठाक हूँ, तो मुझे राजस्थान के सारी पोशाकें पहना के, लहंगे ओढ़नी पहना के, सुंदर बना के गुड़िया सा वो हमेशा मिलाने ले जाती थी एयरपोर्ट पे सांगानेर में. And I used to नारा लगाओ because बुलंद आवाज थी, जो भी आ जाए. तो when Chowel I came in the same dress. हिंदी चीनी भाई भाई आप कहूंगे तो तुम लोग समझ लाओगे, बट आई डिड से हिंदी चीनी भाई भाई. जब बुल्गारियन एंड क्रिश्चियन आए, then I said हिंदू रूसी भाई भाई, and every dignitary will present me something, kiss me here, kiss me there, and so many photographs at that time. I met Duke of Edinburgh, Queen Elizabeth. I met John F. Kennedy and Mrs. Kennedy. So I had been very lucky to be able to be going in a school which was so open, and my headmistresses knew, 2 of them, that I had something in me which was very different from other girls. There I joined NCC also. Today I can say I can fire .22, Barabor, 303. Pistol. I was sergeant major of my school, so they gave me every opportunity, and they let me join radio also. And my mother and my father, they never objected to that. They said कि स्कूल करवा रहा है, तो हमारी शील्ड थी कि स्कूल ले जा रहा है, जो कुछ करवा रहा है. आजकल के स्कूल बहुत गलत करते हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डालते हैं. जाओ जी आपको बच्चों को कुछ बनाना है तो लाओ, ड्रेस बनवा के लाओ, जाओ जी इतने पैसे दे दो. No, that's not. I had been parent teacher association member. I have one son, and I also was teacher and a lecturer. I feel very strongly that the education institution should participate in home of the students, not the home of a student should participate in the education institution. It's a wrong way of thinking. It's a उल्टा बांस बरेली को. ऐसा नहीं होता. आप वो तो बेचारे घर की हाउसवाइफ है,
आप उनको कह रहे हैं कि आप भी करके लाओ, आप उनको दिखाइए कि हमने बच्चे के साथ ये किया है ना, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड हमारी माँ ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया सिवाय परमिशन देने के। हमारी टीचर जाती थी, हमारे कपड़े नपा के आती थी, और राजस्थान वाज वेरी प्रॉमिसिंग एंड एजुकेशन वाज फ्री। So we all got good education, solid education, and good opportunities. I remember all my teachers with my bow, my head, that they were so good to me, and they let me do. डांट भी पड़ती थी, I was very शैतान, वो भी सजा भी मिलती थी, लेकिन जो कुछ बनी मैं स्कूल से बनी। उसके बाद कॉलेज ने तो पलकों पे उठा लिया, because college was watching, and then from Maharaja I came to Maharani's College. Imagine look at the names, and the Maharani's College is also the very first college of Rajasthan, and उसके भी 75 years में हम लोग गए, और कॉलेज ने हमारी माँ से कह दिया था कि देखिए मिसेस पांडे, आपकी पांच लड़के, दो हमारे अंकल्स ने अडॉप्ट कर ली थी, 5 लड़कियां महारानी कॉलेज आएंगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्म भरवाइए, हम आपकी लड़कियां मांग रहे हैं। When I was to go, तब तो दूसरा कॉलेज था भी नहीं, अब तो बहुत कॉलेज है। When I was to enter college, I was still thinking कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मतलब हमको वैसा ज्यादा सोचने को मौका नहीं देते थे, पेरेंट्स कुछ सोच के रखते थे। उससे पहले हमारी प्रिंसिपल मिसेस भारतीय का घर फोन आया, दैट इज हाउ यू मार्क टैलेंट, दैट इज हाउ यू सी इट, दिस इज आई हैव रिकॉग्नाइज्ड अ टैलेंट। तो उन्होंने घर फोन किया, और घर फोन के कहा रमा पास हो गई, बुलाइए। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी माधवी कि मेरे कितने नंबर आए, उसका तो कोई झगड़ा ही नहीं था, बिकॉज आई हैड सो मेनी मेडल्स ऑन माय शोल्डर्स। आई वाज गुड सेकंड क्लास, 59 पॉइंट समथिंग। और कोई वक्त होता तो कॉलेज में मेरी हाथ जोड़ रही होती माँ हर जगह, आई मेरी लड़की ले लो आगे। यहाँ हम सिर्फ गुड सेकंड क्लास वाले, और रेड कारपेट से कॉलेज में घुसाए गए। वो पहले ही दिन फोन आ गया मिसेस भाटिया का कि ये रमा हमारे कॉलेज में आ रही है, जैसे सुधार आई। रमा जी चल दी अपने कॉलेज में, वहां भी वही जलवा अपना। वहां से हमने थिएटर प्रोफेशनली थिएटर हॉल्स में जाके करना शुरू किया। इफ यू वुड नोटिस दैट स्कूल्स हैव देयर ओन ऑडिटोरियम, तो आप स्कूल टू स्कूल पार्टिसिपेट करते हो, यू डोंट गो टू प्रोफेशनल हॉल्स, यू नॉट अलाउड टू गो। लेकिन जब हम कॉलेज में आए तो ये एक नया काम शुरू हुआ कि हमने रविंद्र मंच थिएटर है राजस्थान का, बहुत जबरदस्त थिएटर हॉल, जिसकी परिकल्पना पंडित नेहरू ने की थी, who I respect deeply, and वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम का बहुत बड़ा हॉल है। मैं जो कुछ भी थिएटर में हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ रविंद्र मंच थिएटर ऑफ जयपुर, और उसकी नींव में मेरा खून लिखा है, क्योंकि सब कुछ उसमें नया मैंने अपने आप किया माधवी। पहली बार लड़कों के साथ हमने एक्टिंग वहीं की, पहली बार कॉलेज से बाहर जाकर के हमने एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेज से पार्टिसिपेट किया, पहली बार हमने प्रोफेशनल 150 रुपए महीने में थिएटर किया विद संगीत नाटक एकेडमी, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट संगीत नाटक एकेडमी का एक्सपीरियंस वाज विद मिस्टर मोहन महर्षि। आफ्टर अलका जी वही रह गए यहाँ पर, मैं अलका जी को भी नमन करती हूँ, उन्हीं के शिष्य थे मोहन महर्षि, वो हमारे यहाँ गए और उन्होंने बाकायदा 3 महीने की वर्कशॉप की और वहां से शुरू किया। तो बॉल स्टार्टेड रोलिंग। अब इस बीच में मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट रेडियो स्टेशन पे भी सेलेक्ट हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता था स्टोरी सुनना और सुनाना। और चंद्रलाल शर्मा जी मेरे गुरु थे। गोवर्धन, देखो फिल्म इंडस्ट्री से कितने लोग हमारे गुरु रहे, सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी, गोवर्धन इसरानी, ये सब जयपुर प्रोडक्ट है, और इन्होंने बाकायदा मुझे सिखाया। गोवर्धन इसरानी तो बहुत सारी बहुत एक्टिंग सिखाई। तो जब हम इसमें आ गए अपने रेडियो में, तो उनके 5 रुपए भी अच्छे लगते थे, और कहानी के फिर आगे युवाणी खुली। आई वाज द फर्स्ट वॉइस ऑफ युवाणी ऑफ राजस्थान। देन आई स्टार्टेड एक्टिंग, एंड देयर आई स्टार्टेड राइटिंग प्लेस। उससे पहले मैंने लिखा नहीं था। तो
मैं वो लिखती थी, कविताएं लिखती थी, पर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा वाज नॉट देयर, लिखने का। अब जब लिखने बैठती हूँ, अब तो 5-6 किताबें छप गई ड्रामा की भी। लेटेस्ट जा रही है प्रिंट में, ऑन ट्रांसजेंडर्स, लल्लन मिस बाई वाणी प्रकाशन। काफका छप गई थी ज्ञानपीठ से, which is both are the leading publishers of India in हिंदी। तो ये एक जो तुमने सवाल पूछा, ये एक राह निकली थी। मैं अगर एक लाइन में कहूँ, all I was doing, all I am doing, all I will do is I communicate with people, whether I was a lecturer or I was an artist or a theater director or a film producer. All I do, I communicate with people. I love people. Beautiful, lovely, wonderful journey, I must say. And you are truly a powerhouse of talent, I must say. And actually, you rightly said that it's all what you are today is because of the teachers, because of your mother, and also because of the exposure that you get and your teachers give you in your college. So that's very well said. And also that the teachers in the new generation need to be having as much as the effort that they used to put earlier in your times. And the parents had to do nothing but to send their children to school and college. Everything was taken care of by the teachers, and you became what you became because of your teachers. So, Ramaji, I would like to know about your company, Montage Films. I believe you have this company called Montage Films. If you can tell the audience about that. Yeah. मैं तुमको बीच में इसलिए चुप हो जाती हूँ, नहीं तुम फिर कहोगे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। मोन्टाज फिल्म, ये मेरा जो 2 सपने हैं उनमें से एक आंख का सपना मोन्टाज फिल्म से है। जब आपको क्या करना पड़ता था माधवी, मुझे एक काम बहुत अच्छा नहीं लगता, वो है कि दरवाजों पे दस्तक दे करके काम मांगना। तो आप एक बार जाइए, 2 बार जाइए, फिर आपको लगता है कि उस तरफ जो बैठे हैं भगवान की दया से उनका ऊपर वाला जो स्टोरी है वो खाली है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम those who give you the work, especially for film, are not as sensitive as they should be for giving work to anybody. I'm not talking about selfishly about me, but when you are wanting to get some work done for your institution, and especially in theatre or in films, you have to keep with you sensitive-minded people who know the subject and also know our format. तुमको हमारा पता नहीं कि हम कैसा बना के आगे रखेंगे, शेफ हम है, तुमने माल दे दिया यार, तुमको हमारी का भी पता होना चाहिए, and then you have to leave it on us, have trust, then only call us. तो फिर मैंने सोच समझ के अपनी कंपनी बना ली, and I'm very happy मैंने बना ली। इसमें जब मेरा दिल करता है अपने घर का पैसा उड़ाने का, तब मैं प्यार से उड़ाती हूँ और अच्छी फिल्म बनाती हूँ और अच्छा काम करके दिखाती हूँ। विद द रिजल्ट आज मेरे पास अपनी ऑडियंस है, मुझे किसी के पास कहने जाने की जरूरत नहीं। 2 चैनल्स हैं मेरी जो चल रही हैं। मोन्टाज ने बहुत काम किया और दूरदर्शन ने बहुत काम दिया, और दूरदर्शन की अर्ली दूरदर्शन की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की इस इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के अगर लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, दूरदर्शन को खंड खंड करके जो बिखेर रहे हो उससे आप अपने ही कालिदास की तरह डाली काट रहे हो, क्योंकि आप जैसी पावर किसी में है नहीं। लो पावर ट्रांसमिशन के आप लोग मालिक हो। आप देखते हो प्राइवेट चैनल्स पे ये सब सतही मामले हैं, जिस दिन सैटेलाइट जाएंगी ये सब उड़ जाएंगे, तो पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। इनकी ना कोई कमिटमेंट है ना, सभी के लिए कह रही हूँ, बारिंग ओनली वन चैनल विच आई लाइक इज एनडीटीवी, और बाकी मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, अगर वक्त आएगा तो वो भी बताऊंगी कि कहाँ कब रह जाते हैं हमारे दोस्त। पैसा खूब खर्च करते हैं लेकिन कमिटमेंट टू सोसाइटी इज
एब्सोल्युटली नन। वो सिखाते हैं, वो पकाते हैं जो है नहीं। तो दूरदर्शन में एक बात थी कि आप सोशल कॉजेस के लिए, सोसाइटी के लिए एक जवाबदेही उनकी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट मीडियम है और गवर्नमेंट मीडियम को हमेशा ताकतवर होना चाहिए प्राइवेट मीडियम से। ये मेरी फर्म ओपिनियन है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, एंड आई विल नॉट डिटर फ्रॉम देयर। क्वालिटी चैनल्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो दूरदर्शन was a really quality channel compared to any other channels which are there so many now, but then no comparison to the Doordarshan channel. Now you are repeating them. अब and this is हमारा दुर्भाग्य कि क्या होता है कि जैसे कपड़ा बदलता रहता है, यू आर इन द डिजाइनिंग सेक्टर माधवी, ऐसे ही जब ये मीडियम बदलते हैं तो हम जो काम लो बैंड में कर चुके हैं, टेप भी एक तरह का कपड़ा है, कैमरे भी एक तरह की टूल्स है। अब वो टूल्स जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जापान है, चाइना है, इनको तो मजा आता है हर 2 साल में वो उसका एक अपग्रेड दे देते हैं। पर हम जो हजारों मील दूर जाके काम करके आए हैं, हमारे लिए वो सामान फेंकना मुश्किल, वो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, हम उनका क्या करें? तो इसलिए एक ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे पास। ऐसी आई एम सिटिंग ऑन वर्चुअली 1500 documentaries which I have shot myself. Every single shot in documentary, no shot is to be thrown because वो फिर वापस नहीं होगा। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन है वो तो दोबारा नहीं हो सकता, तो उसका कोई एनजी शॉट होता ही नहीं। तो सारे शॉट, तो कहने का मकसद ये, तो हमने पहले लो बैंड किया, फिर हमने उसके बाद हाई बैंड किया, फिर हमने बीटा किया, फिर बीटा कैम किया, फिर एचडी किया। यानी मेरी जिंदगी के 30 सालों में आपने 5 बार मीडियम ही बदल दिया। तो जितना काम मेरे 30 साल का है ऑन फिल्म, उसमें हर 10 साल में आप झटका दे देते हो। अब वो, मगर अब उनको वही फिल्में मेरी नहीं, चाहे वो दूरदर्शन की थी, वो लानी पड़ी। अब आप दिखा रहे हो रामायण, आपको पीली पीली दिखती है। अब आप दिखा रहे हो महाभारत, कंटेंट में इतना जान है कि आप पीली भी देखते हो। Everything तो content. Back to roots, be it meditation, be it yoga, be it even stories and movies or anything, you know, because वो quality था उस टाइम पे भी और अभी भी है, और इस चीज को मानते हैं। इन्होंने सॉरी टू से कि उसका असर फिर दूरदर्शन में पड़ने लगा, और दूरदर्शन में अब इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग आ जाते हैं तो वो उसमें से पक्के नहीं निकलते हैं। पहले दूरदर्शन की भट्टी से पक्के अपग्रेड होते होते तब डीजी आता था, तब खिलता था फूल, उसको पता होता था नीचे क्या काम होगा। अब आप बाहर से ले आते हो, उन सबको बंबई दिखता है। पहला काम दिखता है क्या करें कि बंबई वाले मेरे दरवाजे पे आके बैठ जाए। मैंने देखा है रामानंद सागर को बाहर स्टूल पे बैठे हुए, दिल दुखता है, बेचारे महाभारत को, उसको रामायण को लेके फंसे हुए, और उनकी ईगो यही सेटिस्फाई करती कि ओ आई मेड हिम सिट, ओ आई मेड बी आर चोपड़ा सिट। अब एक वो जो छोटी ईगो है, क्योंकि आप कला की दुनिया से आए नहीं हो। अगर आप कला की दुनिया से आए होते तो आप इनकी इज्जत करते और कहते देखो वहां जाके इन्होंने इतना बड़ा काम कर दे। अच्छा, अब जो आए हैं उनको बंबई ही सब दिखता है। बंबई को, खुद को बंबई नहीं नजर आ रहा। ऑल फिल्म्स आर बिकमिंग बंकम एंड ऑल माफिया, सब कहानियां तुम सुन रही हो, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन एक जो कमिटमेंट टू सोसाइटी है, एक कमिटमेंट टू इंडियन कल्चर है, जिस पर मोन्टाज की बात वापस आएगी, वो कमिटमेंट आपने खो दिया, खोते जा रहे हैं। नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वैक्यूम्स क्रिएट करती है। अब जो गूगल चाचा पढ़ाएगा वही पढ़ेगा, वो क्या जानेगा कहाँ जाना है, वो क्या देखेगा, है ना। तो एक कमिटमेंट जो था आपका कि हाँ तो कुछ सोशल कॉजेस के लिए काम करे, कुछ सोसाइटी के लिए काम करे। तो मोन्टाज फिल्म ने विरासत की फिल्में ली। मैंने हिस्ट्री में एमए किया, तूने पूछा नहीं मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ। लगती तो हूँ पढ़ी लिखी, पर पूछ लेना चाहिए कि पढ़ी भी होगी। नहीं माध्यम में बहुत पढ़ी लिखी लगती हूँ। मैंने हिस्ट्री में एमए किया and I taught my university, and that too in when I say taught, my subject in which I taught the university was numismatic archaeology. Archaeology is my passion.
न्यूमिस्मेटिक कहते हैं सिक्कों का की इतिहास, है ना। तो सिक्के मेरे पास खनाखन, वो मुझे गीत में मैं ऐसी लिखती हूँ कि रात में सोने की मोहर की आवाज बड़ी मीठी, और रात मैंने सपने में लाख मोहर देखी, और मोहरों की छनाछन से आंख मेरी खुल गई, आए फिर ना पूछे ये रात कैसे बीती। तो ये गीत में मैं ऐसे लिखती हूँ सिक्कों के। मगर उससे एक मेरे जहन में ये बात आई कि इन जगहों को विजिट करना चाहिए और इनकी फिल्में बनानी चाहिए। ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन और विरासत को बचाने का काम मोन्टाज फिल्म की वजूद ही है, इंडियन कल्चर को बचाने के लिए हुआ, संजोने के लिए हुआ। और मोन्टाज फिल्म का की जो अपनी सोच है वो ये है कि जो कुछ आप करें उसमें विरासत को बचाए। एक मेरा सीरियल आज भी चल रहा है और 20 साल से चल रहा है आज। बराबर जयपुर दूरदर्शन में तो 15 साल चला, फिर भोपाल में चला, फिर कश्मीर में, फिर जम्मू में, और उस सीरियल ने जमीन पे भी फील्ड वर्क बहुत किया। दैट इज जानिए अपना देश, नो योर कंट्री, द लिटिल नोन इंडिया एंड द अननोन इंडिया। उसका पहला जो टाइटल सॉन्ग है, इट गोज लाइक दिस, जानी जानी अपना देश, अनदेखी अनजानी बातें, कम देखी कम जानी बातें, कैसे लोग कैसा भेष, जाने अपना देश। तो आई एनकम्पास एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, culture, people, tribes, anything and everything जो भारत है, जिस भारत के जो लोग नारे लगाते हैं वो भारत नहीं, जो भारत है, सबका भारत, उस सबके भारत में जहां जहां हमारी संस्कृति फैली है, बसी है, मैं उनको, मैंने अब तक कोई 50,000 किलोमीटर की यात्रा की है इन 20 सालों में। मैं पहाड़ों चढ़ी हूँ। आई माइट लुक प्लम टू यू बट आई डू माई शूटिंग माई सेल्फ, and I go to मैंने रामेश्वरम में शूटिंग करी, मैंने तिब्बत माना पास में शूटिंग की, मैं लद्दाख में शूटिंग की। एक मेरी और सीरीज चल रही है, I love Ladakh. You must see it. Even the Ladakhis fell in love with me. You can ask Motu Chuspa, who's the leading producer of Ladakh. And those 7 heavenly days I will never forget. I'll go again. I did a lot of work in Kargil. लोगों को पता है करगिल का नाम में सिर्फ लोगों को वॉर याद आती है, लेकिन करगिल खुद में कितना, अब तक लोगों को सिर्फ यही पता है कि हाँ भाई देयर वाज दिस रूट व्हिच वाज नोन एज द सिल्क रूट, बट नो, देयर वाज अ रूट टू तजाकिस्तान, तुर्कमेनिया एंड ऑल दैट एरिया फ्रॉम करगिल ऑनवर्ड्स, दैट्स नोन एज सॉल्ट रूट, जहां से नमक आता था, क्योंकि नमक तो बनता नहीं कश्मीर में, सॉल्ट वहां से आता था। और उस सॉल्ट की इतनी खूबसूरत कहानी है, अगर इन लोगों को देखनी हो तो दे मस्ट टाइप I love Ladakh and then go to Kargil series. You'll find that museum, salt museum. You'll see those sarai जहाँ ये लोग ठहरते थे, the kind of garments वो लोग इस्तेमाल करते थे, the dresses, the equipments, it's lovely. आप मेरे एक बहुत अच्छा सीरियल सैटेलाइट पे चला था। आई वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सैटेलाइट, दैट इज द सैटेलाइट ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन की। 1 साल तक वो प्रोग्राम चला था। आज मुझे गांव-गांव उतना ही याद करता है। मैं प्यार से हेमा जी को चैलेंज देती हूँ, चलो अपन राजस्थान के गांव में चलते, देखते आपको पहचानते लोग कि मुझको पहचानते। इतना मुझे डीप विलेजेस ने प्यार दिया ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन ऑफ सैटेलाइट। तो उसमें एक प्रोग्राम था, हंसी के एक पल को भी ये दुनिया क्यों तरसती है, हंसी के एक पल को भी ये दुनिया क्यों तरसती है, जरा दुख भूल कर देखो तो हर पल मौज मस्ती है। तो ये जो मौज मस्ती है विरासत की, ये मोन्टाज फिल्म की आधार जमीन है। इट्स द बेस ऑफ मोन्टाज फिल्म्स। So we made many serials out of that. We did women-oriented serials, Muslim women-oriented serials, and we did children-oriented serials, and a lot
work in documentaries. तो ड्रामा एंड डॉक्यूमेंट्रीज दोनों चलते रहे. तो कभी कभी बोलो. Culture and tradition that you are doing and you're working on. And I think Jani Apna Desh is based on this philosophy, running from 15 years in Doordarshan, Rajasthan, having completed more than 25 episodes, I believe. 250 episodes. 250, right? 250 episodes. Amazing. And films and also short films, art films, 3 TV films, and 4 films including 35mm full-length feature film for the film division, which won an award in the Indian Institute of Mass Communication. Yes. And project Jashne Virasat, that's one project that you're also working on. The projects now, I couldn't get you. Jashne Virasat, the project that you... Yeah, this is very interesting project, and I would like all, if there are any college teachers or college school teachers or college professors or principals or any governing body of education sitting here, must listen to this carefully. In Jammu and Kashmir, where nobody was ready to touch the students with a Barchis pole at a very tough time of 93 to 98, and then 2008, I did these Jashne Virasat, I did youth festivals of culture, in which I got a sponsor from here, that was Ozone and No Marks. We did a lot of work with them, and they were very kind to support this venture. So we did Jashne Virasat with thousands of school-going children in Kashmir. It was a time when nobody even saw this road for years, but we did it. Even the police was anti doing this, but since Mr. Bharat Vyas, who is now here, was the I think divisional commissioner of Srinagar, and he's from Rajasthan, was so supportive. Then he said, and Mr. Mufti Muhammad, then CM, they said, "नहीं हमारे बच्चों के लिए आप." My husband was Mr. Najwa Saqib was already there as a IAS officer. So Mufti Muhammad ji said, if you are wanting to do it for our children, I give you full permission. Although police kept on saying कि it's risky, कहीं से गोली चल जाएगी, but Madhvi, it was an adventure I'll never forget in my life. Thousands of kids came all the way from Kupawara in the buses were provided the protection. Children were so happy. They were so happy कि उनको बाहर हवा मिली. We made a walk, heritage walk, and we gave everybody one clap. जाने अपना देश है ना, a T-shirt, which was then sponsored by this No Marks, and I'm so happy. Thousands of students walked, danced, and on the streets of Srinagar, from Botanical Garden to we went all the way to Pari Mahal, and there it was the first time the children had the multi-religious prayer, to the extent कि उनको बेचारों को संस्कृत के श्लोक पूरे याद भी नहीं थे. कोई रह नहीं गया था वहां पर पंडित बच्चा. एक सिख पंजाबी लड़की ने वो पढ़ा, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी गई और वाहे गुरु का नाम लिया गया. इतना अच्छा लगा in that Pari Mahal, and Zee TV made a live telecast of that. I still remember that was my first venture. Then I did year after year for 5 years with colleges, Jashne Virasat. I stopped doing it about 5 years back, 4 years back. Till then, I used to do it on 12th January. That is supposed to be the World Heritage Day. And from this Jashne Virasat then became an exhibition come folk-oriented day. So they would, we gave prizes on quiz. We would show them the quiz of our film and give them
the hundreds of prizes, gave Chandi ka mashal, and that mashal became the roving trophy. कि जो कॉलेज जीतेगा वो पूरे साल वो चांदी की मशाल रखेगा, प्योर सिल्वर की इतनी बड़ी मशाल है, and it's an antique mashal presented to us by Shri Indrajit Singh ji, who himself has got such a lovely collection, is just a पीतल का व्यापारी. ऐसे ऐसे लोग मुझे जिंदगी बने, इसके लिए तुमको तो मुझे फिर इंटरव्यू करना पड़ेगा. The people I have met, the wonderful people I have met, who made my life सितारों से भरी हुई. और उसके बाद जो थे मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं तुम आसमान हो तारों से भरी हुई. तो ये तारे भरे हैं ना, ये सब वो तमाम वंडरफुल लोग हैं जो ये कहते हैं जिंदगी में आते हैं और चमका जाते हैं, टिम टिम करते तारे. तो ये जो जश्न विरासत में वो लोग अपने घरों से, वो हम उनसे कहते थे तुम्हारी दादी से बात करो कि तुम्हारे यहाँ वो कौन सा बर्तन है जो अब इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन लोगों को जानना चाहिए. माधवी, वन बर्तन आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. जैसे ये लोग डोसा बनाते हैं साउथ इंडियन, ऐसे गुजर लोग, डोगरे लोग डोसा बनाते, वो लोग ये लोग डोसा बनाते, वो लोग डोसा बनाते हैं. DH dosa, which is purely done by suji and चावल. वो बनाने के लिए अपन ऐसे करके चम्मच से बनाते. उनके पास एक ऐसा मिट्टी का सुराही जैसा बर्तन है जिसके 5 छेद हैं और 5 उसके ऐसे आते हैं. आई विश आई कुड शो यू. तो वो 5 उसके पाइप्स हैं. And when you burrow उसके अंदर pipe, and then you ऐसे करके it dosa becomes in 1 minute with the 5 times this thing, and it's a pure कुमार का काम, and a normal जुगाड़. उसकी दादी ने दिया, उसने कहा ये आखिरी है मेरे पास, तो इसको वापस लेके जा. That exhibition was in Science College of Jammu, which itself is a heritage building. उसको भी हमने इनाम दिया. और क्या डांसेस हैं वहाँ के, डोगरे, कश्मीरी और लद्दाखियों के. वाह वाह वाह, such colorful fun. So we had a union minister at that time who is no more now, union minister of coal. He went there and he said, I had never seen a thing like this. How could a one woman generated, लेकिन मैं अपने आप पे नहीं लेती हूँ. I had lovely principals like Mr. Singh. I had lovely principals like Hemlata Agrawal. I had lovely principals like other colleges who were out and out to let children have a breath of fresh air. That is how we could. तो मैं सब कॉलेजेस से ये कहती हूँ, अरे नंबर गेम में मत फंसो. 100 के बाद कोई नंबर नहीं है जो तुम उनको दिलवा सकते हो. ये डिफरेंट हो जाएंगे. मगर you're rejecting a very wonderful, talented society just because of the numbers. Just look at those 50s, 60s and 70 walas. How talented they are. The teachers or to the education fraternity, if they are listening to the talk show, there are some very good suggestions coming from you. I can hear that one after the other, and I hope it gets applied and something is done about it. You're absolutely correct on that. And if you can tell something about the latest ventures, that you are into, because I believe there is Giriftari children and book Suno Kahani, children's stories and all that. If you can read. Then again, I would like school teachers and children to listen to what I have to say. I have only one son. I'm repeating this sentence to say कि एक लड़का या एक बच्चा, बेटी भी अगर होती तो वो हमारे लाड प्यार के हाथ बाहर हो सकते थे, पर ये एहसास हमको हमेशा रहा कि जमीन पर पैर रखो. तो ये जरूरी था कि बच्चा किसी अच्छे एनवायरनमेंट से आए. He is a British citizen. I got married in London and my child was born in the same hospital where Princess Diana gave birth to both the sons, in the same ward. Not only that, I also had the antibiotic जिन्होंने ये इजाद की, Mr. Fleming, I think उनका पूरा नाम है, उनका लैब
जहाँ उन्होंने एंटीबायोटिक इजाद की थी, वो उसके नीचे. So my husband on my after the third day of my delivery, he asked me, pick up your child. I have to take a picture. I said, I'm aches and pains all over. Where am I to go? I'm not even discharged. He said, I will discharge after 11 days because the child has some fever and all. He said, Nidhi, chup, chal. We went, tiptoed ourselves to the lab, and I have a picture in front of that lab with my child, where the antibiotic was discovered, was invented, invented. So when I came back, till I was there, I had dreams of a new mother. अच्छी खूबसूरत कहानी की किताबें. So I saw the books from Czechoslovakia. I wanted to be a child myself. Books from Japan, books from China, books from England. ऐसे खुल जाती थी पूरी. I used to love. When I came back to India, I wanted to show something of India to my son. I'm sorry to say, I'm ashamed to say that चाहे वो Children's Book Trust हो, चाहे National Book Trust हो, the books available for on a affordable price for middle class, I could afford anything. But I'm talking something which concern everybody. When I say middle class, I mean it. Or my house help. If she wants to buy a colorful book for her child, there's such a drab-looking printing. Drab-looking printing is, they call it a four-color printing. And Maji, those four colors are all shades of grey and brown. कौन सा बच्चा उठाएगा सिलेटी कलर, कौन सा बच्चा ब्राउन कलर के हाथ लगाएगा, कौन सा बच्चा व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, and you call it four color. Then I decided, जब मुझे कुछ नहीं मिला, I decided to publish a book for my son. And then I published a very colorful book. In next, this thing I'll show you the book. And that was known as Suno Kahani. But what is in that book is a phenomenal story. You will not believe this. Why? Because I'm a good storyteller, so which I am. तो मुझे एनसीईआरटी में मेरी फ्रेंड थी ममता गुप्ता, वो बोली तुम अभी बीबीसी लंदन से लौट के आई हो, बच्चा लेके आई हो, could you please write few stories for us? We need it very badly. So I would get up at 4 o'clock, news भी पढ़ने जाती थी, बच्चा भी छोटा था. But early in the morning, I'm a person who rises early in the morning and then write early. So then I write. Then I wrote these 5 stories, and they were all ending with some kind of a moral value. इसमें ठाकुर जालिम सिंह, बुद्धि और भाग्य, जो मिले सो भला, lovely stories, not because I have written, because, and I remember my time of my childhood when my Thaima, my Aya, we don't call them Thaima, they are part of mother, so then we call it Dhaji. तो धाई जी माने धाई माँ, तो हमको रात को वही कहानियां सुनाती थी, और माधवी ऐसे कहानियां सुनाती थी, 3 दिन तक एक कहानी चलती थी, और सीरियल की टॉप स्टोरी टेलर थी वो, और ऐसी जगह जाकर के छोड़ देती थी कि दूसरों पूरे दिन आपको रात का इंतजार होता था. और जोधपुर की रातें, गरम रातें जिसमें आप ठंडा पानी छिड़को, उसके ऊपर गद्दे लगाओ, फिर पानी छिड़को, फिर ठंडे पे बैठे, फिर दादी कहती थी तो वैसा कहते राजकुमारी के घर की बेटी होती है, तो हम 5 एक साथ लेटा करते थे, तो बोल के भाई साहब फिर यूं हो कि राजकुमार घोड़ा पे चढ़े हो और कलीदार सांप पैर के तलवार हाथ में निकाल के पर टक टक करते तो घोड़ा पड़े. आपको पूरी विजुअल स्टोरी that woman used to have, that gave me an idea. Amazing. She was also a guru. गुरु कहाँ छिपा होता है कुछ नहीं पता, तो वो भी मेरी गुरु थी. तो जब मैं लिख रही थी तो I wrote in my preface also कि I now realize कि बच्चे को टेलीविजन के सामने बिठा के आप बच्चे से मुक्त हो जाते हो और बच्चा हमसे मुक्त हो जाता है.
कि कहीं पीछे से आंटी खर खर कर रही थी। तो मेरा बच्चा भी बहुत टेलीविजन देखता था। वो अलग बात है कि वो टेलीविजन देख देख के नाउ ही इज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड डिज्नी मेकिंग कार्टून्स। लेकिन दैट टाइम आई वाज वरीड। तो एनीवे, तो मैंने कहानी लिखी। अच्छा, कहानी लिखी थी, कहानी रिकॉर्ड हो गई। ठाकुर जालिम सिंह इज स्टिल देयर इन YouTube. You can go in on NCERT and listen to that कहानी। अच्छा, अब कहानी निकली तो अब क्या करें? Then I decided to make this book. So I printed this book. This book was launched by President Dr. Shankar Dayal Sharma in the President House. They don't allow even 11 people for such meetings, but his wife was our old student of Maharani College, and she was a sort of a very kind person, and decided Akshat ji is no more. He was our news editor. He decided to give this book to Dr. Shankar Dayal Sharma, God bless his soul, read the whole book and then said कि अच्छा आने दो, उसको को बुक प्रेजेंटेशन नहीं होगा विद ब्रेकफास्ट। तो उसको हम लॉन्च नहीं कहते बिकॉज इट इज प्रोटोकॉल में कहलाया नहीं जाता लॉन्च। इट वाज ऑल ओवर इन द न्यूज आल्सो, बट इट सेज कि बुक प्रेजेंटेशन। तो मैं कैसे आऊंगी? 11 मेरे तक खानदान बड़ा है, मैं माँ को भी लाऊंगी। We went 17 of us, had a lavish breakfast with the first lady of India that time, and of course the doctor blessed us. तो वो बुक भी लॉन्च हो गई। अब क्या करें? मेरे हाथ में खुजली चलती है। तो जयपुर दूरदर्शन ने कहा कि आप कोई वो दीजिए, क्या बोलते हैं, ऑफर दीजिए। And I decided to do this सुनो कहानी की पांचों as a serial. So I did a fantastic shooting in Mandawa House in a kila with the forge. Thakur Sahab Mandawa happens to be our friend. He loved it. एक महीना हम किले में रहे माधवी, और एक महीना मैं शूटिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है राज कपूर शूट कर रहा है, क्योंकि वो 1:7 शूट करते थे। एक शॉट लेते थे, 7 बर्बाद करते थे। तो मैं यही करती थी, मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग। तो मैंने 1 महीना किले में रह के शूटिंग की मंडावा में, और 5 फिल्में बना दी। बाकी बची हरियाणा में की। अब भाई फिल्में भी वो हो गई, सीरियल आज तक दिखाया जाता है। आज इतने साल हो गए, हर बच्चों की छुट्टी में पहले सुनो कहानी आ जाता है। पर रमा पांडे को कहाँ चैन? अब मुझको उससे भी आगे कहीं जाना है। मुझे ठाकुर जालिम सिंह में पोटेंशियल दिखिया, और मैंने आई देन टर्न्ड इट टू इन अ थिएटर play, and which is one of the finest plays I have produced, and has created history with 30 people participating in it. And पूरा शादीपुर डिपो मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, कठपुतली वाले, और कठपुतली की कहानी से ये सारा शो किया, and it is very colorful show. So now जाके बेचारे ठाकुर जालिम सिंह जो है वो 5 जो ट्रेक में आ गए। उसकी किताब हो गई, उसका सीरियल हो गया, उसका थिएटर हो गया, उसका फिल्म हो गया। Not only that, then I went to the school, श्री राम स्कूल में पढ़ता था बच्चा, तो ये कहने लगे कि हमारे बच्चों को भी सुना। I made thousands of children participate in ठाकुर जालिम सिंह। सब लोग अपने कागज की तलवारें लेके आते थे, और हम उनको संधि के लिए रुमाल बनवाते थे, एक दिया जलवाते थे। तो I used to do all that. I had fun. Yes, I had fun with my art. Yeah, you can say that. I had fun with my art. Art is my life. I live for this. I find Rama lives in art, and Rama lives in communication. मैं बात नहीं करूं तो बात का मतलब बिना बात नहीं, सारा दिन तो मैं घर में अकेली खाली रहती हूँ। वो टाइम में कंजर्व करती हूँ एनर्जी, और फिर जब मैं ब्लास्ट करती हूँ संडे को, कल है मेरा शो, आना तो 5 से 6, उसमें सारा सुनाती हूँ। तो इन 5 किताबों में भी बहुत काम हुआ। राजस्थान में बहुत काम किया मैंने, और मुस्लिम औरतों पे भी इसलिए किया कि मेरा बहुत नाता है मुसलमानों से, एंड आई सल्यूट देम, एंड आई हेट दोज हु से Muslims are not part of India. They are part of India. They are India. They are not part of India. They are India. अगर वो नहीं है तो तुम नहीं हो। तुम जो कोई भी हो, I don't care. तुम पीला पहनो, चाहे भगवा पहनो, चाहे हरा पहनो। और वो मुस्लिम भी सही नहीं है जो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नहीं। हिंदुस्तान उनका है जो हिंदुस्तान के हैं।
बस बात खत्म। मतलब तुम्हारी मेरी नहीं, पर इसी से मुझे गीतों की और बहुत सारी काफका जब मैंने किया वो बिल्कुल अलग काम था। ट्रांसलेशन से मेरा साबका पड़ा बीबीसी लंदन में, बहुत सिखाया बीबीसी ने। आज कल मेरे बॉस का वर्ल्ड वाइड ट्रिब्यूट है, वो रहे नहीं, कैलाश बुधवार, बहुत सिखाया उन्होंने। मैं तो यहाँ की मैं बहुत जल्दी जब मैं कनाडा से लौट के आई, जहाँ मुझे कल्चरल एम्बेसडर बना के भेजा गया था, तो मेरे साथ अंजला बेदी भी थी और इनकी अमजद अली खान साहब की वाइफ राजू सुबलक्ष्मी वर्मा, वो भी मेरे साथ गई थी। तब तक इनकी आशिकी थी, शादी नहीं हुई थी। तो हम लोग सब कनाडा गए थे और वहां से हम लौट के आए। तो हम लोगों ने फिर अपना अपना राह पकड़ी और अपना काम किया। तो उसमें हमने बहुत सीखा। आई वॉज ऑफर्ड स्कॉलरशिप टू हॉलैंड, देन आई एम अ ट्रेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आई एम नो हैंकी पैंकी। किसी मिनिस्टर ने मेरा किसी पीछे के दरवाजे से कोई मदद नहीं की, पर ऐसे अच्छे लोग थे, ऐसे अच्छे मिनिस्टर भी रहे, वसंत साथी जी जैसे, अपने गुजराल साहब जैसे, अडवाणी साहब जैसे, जो टैलेंट समझते थे, जानते थे, और अगर आप सही प्रपोजल लेके जाओ तो आपकी बात सुनते थे। तो वो एक बात थी। जब मैं ट्रेन होकर के आई तब तक इमरजेंसी लग गई थी। फिर मैं कंस्ट्रेंट फील करने लग गई थी कि मैं बहुत कुछ सीख के आई हूँ, तो मैं खुद जाऊंगी दूरदर्शन में। देन आई रिजाइन फ्रॉम दूरदर्शन, आई वाज द प्रोड्यूसर विद दूरदर्शन। और दूरदर्शन ऑलवेज लव्ड मी विद आई एम वेरी प्राउड टू से आई एम दूरदर्शन का बच्चा, आई एम जयपुर रेडियो स्टेशन का बच्चा। और जो भी यहाँ बैठे हैं कुर्सियों पे लोग आते हैं जाते हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप हवा हो, आप आओगे और जाओगे, कल को ट्रांसफर हो जाएगा, आप चले जाओगे इंफॉर्मेशन में जॉइंट सेक्रेटरी बन के, जो आपकी हमें मंजिल होती है। लेकिन हम द कंटेंट मेकर्स, द टेक्निकल स्टाफ ऑफ दूरदर्शन आर दूरदर्शन, they are committed to the audience of India. They are the people of India. So we are Doordarshan. You are not Doordarshan. You are just a kursi. We are Doordarshan because we are doing the content. We are making films. This goes for every single colleague, छोटा या बड़ा। हमारे वक्त बहुत अच्छे ऑफिसर थे। मुझे कुछ बातें साफ कहना अच्छा लगता है माधवी। आई थिंक गौरव में वो दुष्यंत की कहता है ना है कि बस वो एक पत्थर तो उछालो यारो, बात तो कहनी चाहिए। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं तो मस्त हूँ। और कभी मैंने टैलेंट नहीं होती तो डरती, वो टैलेंट है तो डरती नहीं। मुझे पंडित ने कहा था जन्म पत्री देख ले, तुम बेटा जहाँ मुक्का मारोगी पानी वहीं से निकलेगा। तो मैं मुक्का मारा नहीं है, मगर मैं सोचती हूँ वो एक है ना, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। प्यार के हम सदाई है, प्यार बांटते चलते हैं। प्यार जब तक मेरे दिल में है, मेरी राहें हमेशा खुली रहेंगी, ये मैं जानती हूँ। बहुत काम किया, बहुत काम करना बाकी है, बस दुआएं करो मेरे लिए कि मेरा काम ना रुके। इसीलिए कोविड में भी हारी नहीं, मैंने एफबी पेज शुरू किया और उसमें क्या you can I come from a family, I know you wanted to ask this question, which is a very well known family. हर एक सितारा मेरा भाई दोनों बहनें मेरी, ईश्वर की दया से, माँ की कृपा से, दुर्गा माँ की भक्त हूँ मैं, अपना अपना गुण लेके आए। इला अरुण मेरी सगी बहन है और मेरे पीछे पीछे थिएटर में आई थी और मेरे आगे आगे चली, मगर उसके राह अलग है। hugely talented person. My other sister, who's a doctor in Detroit, is not only a well-known doctor, is a fantastic painter. अच्छों को वो अभी उसकी आ रही है, उसने कादम्बरी भी काम किया है हिंदी की, तो उसकी कॉफी टेबल बुक आ रही है। Then my youngest sister Tripti Pandey, she is an epitome of energy and talent. क्या तो उसकी फोटोग्राफी और क्या उसने टूरिज्म ऑफ राजस्थान को की बैकबोन रही है, वो माने न माने।
जैसलमेर फेस्टिवल उसका और उनके तो सिमर सिंह जी का की देन है। वो थिंकिंग प्रोसेस के पार्टनर्स हैं और ह्यूजली टैलेंटेड है अहमद बनावी। तो बहुत कुछ काम इन बहनों ने भी किया और बड़ी बहनें चाहे गृहस्थी में रही हो पर उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा कर दिए जिन्होंने नाम पैदा कर दिया। आप एक एक का है वो साइडवेज उसकी है कंपनी, उसका वो आप I think unmute हो गया अर्जुन, can't hear. he's Can't my hear. brother. Sorry? Yeah, I can hear you now. Reach with your voice. I can hear. It's fine now. नहीं नेट के साथ हो जाता है। It's like a powerhouse. मैं कह रही थी कि सभी लोग टैलेंटेड हैं। हमारे घर में इस समय 35 लोगों की फैमिली में से 15 लोग heavily creative field में हैं। My own son is a senior producer with the Walt Disney, right now posted in Mumbai, doing many cartoon serials. My bhanja Sunil Babu Badhiya, Abhijit Awasthi owns a multi-crore company and doing many things. And मेरी भांजी, she herself is vice president of ZTV, and one was in अपना मैं तो चैनल का नाम ही भूल गई। I think मेरे कहने का मकसद ये कि लिखने पढ़ने का पांडे परिवार में ब्राह्मण होने के नाते, मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम सेइंग अगेन, आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स, आई बिलीव इन ऑल क्लास, ऑल कास्ट, every single part of the society I love and I respect them. तो कहने का मकसद ये कि ब्राह्मण लोग मार्केटिंग करें चाहे न करें, लिखना पढ़ना करते हैं। अब तुम यू आर गुड इन मार्केटिंग, आई एम नॉट, तो लेकिन वादी yes Sindhis I respect my सिंधु सभ्यता के उनको जैसा आता है मार्केटिंग का गुण सदियों से, 100 years से, वो किसी को नहीं आता। मैं I love them and I love languages. जो नया काम मैंने आजकल तुम लोग को बताया कि फिर मैंने अपनी हदों से बाहर मैंने काफका को का छायानुवाद करके प्ले में लाया और काफका को प्ले में लाना, उसको सिंप्लीफाई करना was नाकों में चने चबाना। I read 42 books on Kafka. आप मैंने दोस्ती की काफका से। अब आप एक मरे हुए आदमी से दोस्ती कैसे करते हो? ये कोई प्लान तो नहीं, ये बहुत बुला रहे हो। ये जो आदमी जा चुका है आपके जन्म से इतने साल पहले, उस आदमी के दिल से, उसके दिमाग से आप दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, किस लिए? उसको जानने के लिए। जब मैंने जाना तो मैंने जाने लिया, he became my friend and we produced a good book together known as Girftari. Then it turned out to be one of the nicest plays I have ever produced, and that play is now will be staged again on 6th November in Shriram. So work goes on, it'll go on. I will not stop. There's lots more coming up from you, I'm sure. We are, waiting and we're looking forward because I'm sure there'll be much more and there's much more to you. And before that, yeah, that Pandey has been a leading actress of well-known plays by Sangeet Natak Academy, Rajasthan Sangeet Natak Academy, NSD, and many more. Has hundreds of awards to her credit. She acquires a huge and vast quality in adaptation and translations. She has been involved with BBC Hindi, that plays and features in London. She has been attached and enjoyed and engaged with radio, TV, and films for a very long period. She's been associated with renowned directors like Habib Tanveer and so on. In international media, she has worked with CBC Canada, Voice of America, Radio Netherlands, TV Center Holland, and of course Akashwani. She served as producer with DD India 1975 to 79. Worked as producer with BBC Hindi service at Bush House, London simultaneously, continuing regularly to BBC Asian television
hosted and presented many events, most prestigious venues world over, including the Royal Albert Hall and Wembley, etc. On her return to India, she contributed significantly towards some major field projects of BBC, and that's, I mean, a lot of that was leprosy. That was leprosy. Ah. So I think great, tremendous international exposure as well. Not only India, but internationally, you've done such great work. I mean, rare people would have, achieved and done so much in life, as much as you've already done, and there's much more, I know. So. No, you are so right. Yes, I've been lucky. I had exposure. First time of a professional television in Canada was CBC Canada, and I participated in Gerald production, Potatel's production number 9, and I was given a role of Indian girl from Rajasthan, and that time, first time I remember that first word I said in front of camera was "holy cow," and that became such a huge success, "holy cow," and from there I realized my eyes were open that I probably am not meant for any other medium than television. Then I decided अभी तो मुझे टेलीविजन करना है. कहाँ करना है, कैसे करना है? मैं तो बहुत छोटे शहर की लड़की, जयपुर की, जहाँ ये सब किया ही नहीं जाता, जहाँ बड़ी मुश्किल से थिएटर में घुसे, तो ये कैसे टीवी में जाऊंगी? मेरे तो दिल्ली में कोई था ही नहीं ना, तो और टेलीविजन उस समय सिर्फ दिल्ली में था. We are talking of year 1971, ठीक है? एंड तब तक मैं जयपुर से कनाडा गई थी. आई वाज सेलेक्टेड फ्रॉम जयपुर. तो जब मैं एक दिन आई वाज कॉल्ड बाय एम्बेसडर ऑफ इंडिया, called us all of us to Ottawa in Canada. We stayed with him, Bhatkamkar. His name was Mr. Bhatkam, lovely person. He is no more. And unke carriage se he gave a party in which we had to dance also, and I danced. So basically, ambassador of Holland, Netherlands, came to his house in Canada. So he was so mesmerized with my dance, Ghumar dance of Rajasthan. So he said, "Child, what can I do for you?" So I said, "I want to see Holland." And I have not seen. वो जमाना था मादी जब आप एक टिकट पर 12 स्टॉप ओवर्स ले सकते थे. If you are on the same route, you were not charged. अब तो आपको स्टॉप ओवर देते ही नहीं है. तब तो आप 2-2 दिन की स्टॉप. उसमें उस बार मैंने पूरे 12 स्टॉप ओवर लिए. I stayed in London, I stayed in Lebanon, I stayed in Iran, I stayed in Holland, I stayed in Switzerland, I stayed in Germany. तो पूरा 12 स्टॉप ओवर मैंने लिए. मगर उसमें फिर मैं हॉलैंड में गई. When I went there, मैंने कहा, I heard about this institute. Sorry, I forgot to say. Then I said, I want to see your television institute. So I went and saw the television institute. Nice, small thing, but lovely thing. अब मैंने वहाँ रेडियो के लिए प्रोग्राम भी किए. वो भी हिंदी में एक रेडियो चलाते हैं सूरीनाम वालों के लिए. जब मैं वापस आई तो मेरा मन ही नहीं लगा, आंखों की नींद उड़ गई. अभी तो मुझे वापस जाना ही जाना था यूरोप. मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मुझे जाना ही यूरोप. ऐसी चाट लगी, काय के लिए? टेलीविजन सीखने के लिए. और इसी बीच में मुझे मेरे रिश्तेदार हैं थे स्टॉलवर्ट, वो डाइड एट द एज ऑफ 96, 3 साल पहले. श्री गंगाधर जी शुक्ल, मेरी बहन की नंदोई. He was assistant station director दूरदर्शन. When I came, वो तो मुझे बोले, रमा चलो तुम्हारा एक इंटरव्यू कराते हैं. तो ए प्रताप बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया कि भाई तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस है. वो प्रोग्राम था यू प्रोग्राम कल हमारा है. तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया. जैसे उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, उसके आते मुझसे कहा ना, कैन यू बिकम आवर इंटरव्यू आल्सो, अब तुम हमारे लिए प्रोग्राम करो. मैंने कहा मैं रहती नहीं हूँ यार. बोले कोई बात नहीं, तुम उस दिन के लिए आ जाना. तब तक मेरी बहन भी ट्रांसफर होकर के सुब्रतो पार्क आ गई.
और मैं माधवी, मैं जब कहती हूँ कि बड़ी मेहनत की दिन है ये मेरे, जिनसे मैं आज रमा पांडे भाई, मैं जयपुर से सुबह की बस लेती थी 6:15 बजे की, पहुंचती थी रिवोली सिनेमा 10:15 बजे, तब 4 घंटे पहुंच जाता था। फिर सीधे आती थी दूरदर्शन, तब वो वाला था आकाशवाणी भवन वाला दूरदर्शन। फिर तैयार होती थी प्रोग्राम के लिए, पहले वो मुझे नोट्स देते थे, फिर मैं पूरे दिन प्रोग्राम करती थी वहाँ तकरीबन 4 बजे। अगर 4 बजे खत्म हो गया तो 5:30 की बस से वापस जयपुर, और फिर मुझे कोई लेने आता था उस पर 9:30 बजे स्टेशन पर। एंड माय मदर यूज्ड टू गेट वेरी वेरी इरिटेटेड, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया। पर तब तक मेरी बहन आ गई, तो भैया मैं वो रात वहां सो जाती। एवरी सिंगल वीक for virtually 350 rupees as a payment, I used to come from Jaipur to Delhi. Passion. And I used to do that. And I became so popular. Deepak Vora was doing English ke program and I was doing Hindi ka program. So I still have that cutting of Amitabh Malik who said, Hindi is got a star now. When I presented that program. So Minu Talwar also saw that program and says, तुम्हारी आंखों में ये दो सितारे कहाँ से आते हैं? So brightly sparkling eyes I had, out of joy. So I used to love that program. And years together I used to travel from Jaipur to Delhi, years together, to do these programs, even in satellite. But when I became a producer with Doordarshan, then I shifted to YWCA. Otherwise, I always traveled from Jaipur to Delhi. So that's the passion. That's the passion. I enjoy doing that. It's a lot of hard work. Like every day, if you're up down from Delhi to Jaipur, it's not easy. Same day up down, and it's your passion, your hard work, consistency, persistence, all that makes you know what you are actually. All that efforts that go behind it. And I think there are some questions from the audience. Jasmine is saying that more shows like Mahabharat and Ramayan should be broadcasted for international level to go more exposure to the international people as well. Serials like Ramayan and Mahabharat. Yeah. And Arjun is saying, are you looking for some actors to work for a serial? He says the philosophy of I can't read the whole thing. No. Ask them to remain on your line. We can read afterwards also. Let them propose it. No, as far as you see, I'm not a decision maker, but I will voice your voice to the right people. Problem है कि अगर तुम देखो, just try and figure it out कि Mahabharat of B.R. Chopra has more content, much more near to Mahabharat written originally. Then the Mahabharat which is now being shown is just like any magic show where you have everything flying, more technology, less content, less character. आप 28 साल के लड़के को 18 साल के लड़के को आप बना रहे हैं अर्जुन, a lot different. Casting matters a lot in these mythological things to be able to communicate. I find it has become now more of a glamorous thing to say Shiv Tandav mein only Shivji अच्छे 6-pack वाले आते हैं. That's one thing. बाकी you see Arjun has no commitment, no eye contact, no inner stage of what he was trying to grasp from Krishna. No Krishna, only one Krishna which is now is with Radha. I like in Shri Krishna is a guy who has Krishna's hasi and talks like Radhe Radhe karke. Baki all characters, including Ramayana, are I'm sorry, below my standard. I do not consider them. Their casting has been done nicely. They have been overtly involved in doing too much of glamour to make them like Superman
They are making films like this thing, Spider-Man. वही टेक्निक, अस्त्र शस्त्र के बारे में भी हमारी तो भैया ये विरासत है। हमको तो तलवार, आज मुझसे पूछोगी ना, एक पूरा तुमको मैं एपिसोड तलवारों पे करके दूंगी कि कितनी तरह की तलवारें हैं, कितनी धारों की तलवारें, किस मुठ की तलवार, किस काम की तलवार, किस जगह की तलवार, किस लिए तलवार, क्या किसका काम, क्यों दुधारी तलवार, क्यों फांक की तलवार, उसका घाव क्या होगा। वो कोई भी तलवार इसमें है ही नहीं, उसमें एक बटन दबता वो करके चली जाती है और 4 आदमियों को दरकार है। नो, दे हैव नॉट रिहर्स्ड, दे डोंट डू देयर होमवर्क, दे आर और या फिर वो संजय लीला बंसाली जैसे हाफ कुक्ड रिसर्च करते हैं, कहते हैं हमने गहरी रिसर्च की, फिर जब बनाने बैठते हैं तो उसमें मसाला लगा देते हैं, फिर उनकी लड़ाई हो जाती है उन जात वालों के साथ, फिर पैसा ले दे करके। तो हिस्टोरिकल फिल्म के साथ भी बड़ा वो हुआ। आई वुड कंसीडर मुगले आजम एज अ वेरी गुड फिल्म, वेरी वेरी गुड फिल्म, जहाँ ध्यान दिया कि आसिफ ने चीजों पर, पहनावे पर, कैरेक्टर पर। तो महाभारत इंटरनेशनल लेवल पर जा ही रही है, लेकिन आप जिस महाभारत की इच्छा रखते हैं, जिस रामायण को दिखाना चाहते हैं, और हमारे अलावा भी 5 कंट्रीज में रामायण होती है, देयर ओन रामायण, अपनी रामायण अगर जाए तो हमको अपनी रिसर्च के साथ पुरानी रामायण किस तरह भेजना चाहिए, उतना सादगी ना भी करो, थोड़ा ग्लैमर भी करना चाहते हो, रहो तथ्य के साथ, तथ्य माने फैक्ट्स के साथ, तब करो। एंड एक बात और बताऊं, अब तो लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारी माइथोलॉजी इतनी ज्यादा बड़ी है, उसमें इतनी कहानियां हैं कि सिर्फ दुर्गा सप्तशती जिसका मैं पाठ करती हूँ, उसको अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हजारों कहानियां, हजारों सीरियल तो उसमें से निकल के आए। एक रक्त बीज ही अगर मैं बना दूं, जिसकी एक बूंद रक्त से दूसरा राक्षस पैदा होता है, जो आज की हालत है कि एक बूंद रक्त से दूसरा राक्षस पहले खड़ा हो जाता है, वो रक्त बीज में पहले सीरियल बनाऊं मैं उसी तरह का, और क्या जाने बना ही डालूं, ईश्वर की इच्छा। तो कंटेंट की तरफ ध्यान, it would be nice. It would be nice if I could do that. And I also don't agree they are taking so much of liberty with the social norms. All लोग नाम भी उनका लेते डरते, लेकिन मुझे तो उनके नाम से भी डर नहीं है। एकता कपूर सीरियल्स, all other serials funded by mafias and money churners are playing havoc with the Indian society, the very fiber of Indian society, जहाँ किसी का बच्चा किसी से, किसी का बच्चा किसी से, फिर उसी से नहीं होकर किसी से, मतलब ऐसा तोड़ा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है। और देख कौन रहे हैं, जो बेचारे घूंघट निकाल के बाहर निकलती हैं खाली समय, वो दे आर टोटली परप्लेक्स्ड, दे आर कंफ्यूज्ड कि हम किस सोसाइटी में, या तो हम बनमानुस हैं या ये राक्षस है। अच्छा, चाट ऐसी है कि बंद भी नहीं किया जाता, ये तो नशा है। तो एक 1000 बार कहे, मैं तो जावेडकर साहब से भी कहूंगी कि भाई आपको ये जो आपने गाइडलाइंस लगाई हैं, वो हिंदुत्व की लगाने की जगह कम से कम जो सोसाइटी हिंदुस्तान की है उसको बचा के रखो। क्यों लोग पाकिस्तान के सीरियल देखते हैं, उसमें सादगी बची हुई है, दे आर मच मोर नियर टू लाइफ। आप मेरी मुस्लिम कहानी देखिएगा, मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। हमने गांवों में जाके उन लोगों से एक्ट करवाया, उनको अपने साथ मिलाया। हमारी कहानियां सच बोलती हैं, हमारी कहानियां जीवन का सच दिखाती हैं, और श्याम बेनेगल की कहानियां सच दिखाती थी। अभी मैंने बहुत प्यारी कहानी, बहुत पुरानी देखी, जिसमें ये थी सलवार शुद्धि पर है, बहुत ही खूबसूरत कहानी और बहुत कुछ कह जाती है। ये ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हुए हैं, हो रहे हैं, नई लड़कियां हैं जिनमें जान, शान और कर्म है, जो अच्छा कंटेंट बना सकती है। हमको टैप करना चाहिए, मौका देना चाहिए। That's what I
Very nice to know. Your fearless, bold viewpoint, it's so nice to know. Like, not very many people have the courage to speak out. And it's so good to know your mind and your free thoughts and fearless completely. And I think Arjun wants to say that are you looking for actors he likes the philosophy of Kafi Ras. So in case if you're looking for actors. Kafka, yeah. Kafka ke liye we are looking for. Ask him to come back to my email, which I am saying right now. Anybody who wants to share talent with me, please send your photograph and your biodata. And that is Rama Pandivan. Rama Pandivan, one as a numerical one. Right. @gmail.com. ये टाइप भी कर दो. टाइप करो इसको. Rama Pandivan @gmail.com. Arjun and Arjun like. Anybody wants to, you are free to come on my email. And we will do the casting ending August. Okay. So Ending August because, and if you want to come for Kafka, send the this thing, अपनी height, weight सब लिखा के, and हमारे लिए diction matter करता है, हमारे लिए आप, और सबसे बड़ी बात, I am a tough taskmaster. If you are ready to learn, then please come. I think that's the best, because you learn from the tough taskmasters only. Otherwise, you're wasting your time, I feel. They are the best if you want to really learn in life. Then only come. So I will also say that I'll be too happy to teach you. हम अपनी उस एक महीने की दौरान इनका तलफ़ुज़ साफ करते हैं, इनकी जुबान साफ करते हैं, शीन काफ दुरुस्त करते हैं. इसलिए काफका में आएंगे तो वो भी अगर जबान साफ है तो बहुत सी बात है, नहीं तो उसकी सफाई. तो बिल्कुल ये ना कहें कि पहले हमको उस पे ना उतार दिया फ्लोर पे. हम नहीं उतारते, हम पहले आपको पढ़ाते हैं. पहले 5-6 दिन आप अपनी जबान साफ करते हैं, तब आपको ये मौका दिया जाता है कि खड़े हो, नहीं तो हम नहीं देते. अभी बता दिए रहे. I might look very pretty, but I'm very hard at heart when it comes to my work, because it's not only my repute, it's the repute of the man who's written the Kafka, repute of people who are coming to watch it, to see Kafka, not to Rama Pandey. They are seeing Kafka. So when I produce Kafka, I should present Kafka. So True. that's what. I agree. True. Absolutely. And since Rakshi, the program is about madhvisluxury.co, I would like to know the definition of luxury according to you. एक लाइन में बोलूं, सब जने एग्री करेंगे. All women men will agree in COVID. Luxury is to have a house help. I am Maharani. I have 24 hours help Prabha from the tribe. She's a tribal from Sundarban. She did not leave my side for 1 second, whereas I see my Karodpati sisters and Bhabis crying their throat. They had to do away with them because of the corona. The entire mohalla. I have a live-in driver. I have a live-in house help. No, luxury is jokes apart. This is just a joke. Luxury is where you have at least a room where you can have everything you need to relax. That is luxury. You can put your sofa and a luxury bed and a thandi hawa, in garam mausam mein garam hawa, and a washroom next door, and a little asman to look at. When I see the houses in Bombay and New York, I say, my God, how do they live without looking at asman? जिनके पास luxury is every किसान, अगर उनके पास रोटी हो, खुला आसमान is a luxury. बहता साफ पानी is a luxury. खुली जमीन is a luxury. अगर तुम मुझसे कहो कि तुम्हारी
जम्मू में आई है हाउस which is huge. वहाँ कुछ अगर given a chance to me, I would love to get 2-3 खेत की जमीन, एक अच्छा सा छोटा सा कॉटेज, कुछ फार्मिंग करे. That's a luxury. गाओ मन से, खूब गाओ, खुद को बजाओ. That's a luxury. Laughter is a luxury. A true laughter is a luxury. A true laughter comes जब पेट भरा हो. Luxury is already. But otherwise, I do like luxury houses. I'm pretty spoiled. But I can do without anything and I can do with everything. है तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छे लगते हैं 7-star hotels. I love hotels, really. One of the hotels is Ambassador in Khan Market is my second home. मैं आते जाते वहाँ रुकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. I like. Give me a thought. And then she's saying my pronunciation is very good. Salma ji has mentioned. That's very kind of her. I would also say कि सबसे बड़ी लग्जरी है कि आप जिंदगी जी पाए. इतना तो हो ना. एक गजल की लाइन थी, या रब तुम्हें दुनिया में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता. तो ये हाथ जिगर पे तब होता है जब पेट भूखा होता है, और हाथ हटता कब है जिगर से? जब पेट भरा था तो दुआ पे हाथ होते हैं. तो यार गमे हिजरा में इतना तो किया होता है ना. तुमने मुझसे कहा था कि एक अपनी कविता सुना देना, तो मैं तुम्हारी उस बात की रक्षा करूंगी. जब भी तुम कहोगे तब सुना दूंगी. तुम अभी जो चाहो सो पूछ सकते. I'm at your service, Madhvi ji. So nice. Message would you like to give audience on COVID-19? On COVID-19 I will say, अब अपना दिमाग का अब देखो 6 महीने में आधे से ज्यादा समय तो ये समझने में लग गया कि साला हुआ क्या है. किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है. Doctors do not know. I have real incident from my home. I had my Bhanji and Bhanji Damad. They are heading the Manipal hospital. They both were serving COVID patients and they got corona. And then they wrote, we did not know, 11 days there was a silence, and they pretended as if they are not in there, but they were there, and there was some serious situation also. Now they have come out and everything has happened. They said something which I want to share. They said they are only right now experimenting the fancy doses. There is no dose for corona. And the problem is this, these fancy doses may attack the kidney and heart. May. तो क्या करना चाहिए? करना ही वही चाहिए जो हम कर रहे हैं. पियो अपना काढ़ा, पियो अपना हल्दी दूध, मस्त रहो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करो, डरो मत. जैसे वो आया था चिकनगुनिया, आके गया. डेंगू आया, आके गया. ये भी एक जुकाम हो जाएगा. अभी उनको वैक्सीन बेचनी है. There is a political angle to that. कि they must bring the vaccine down. फिर आप सबको ठोकेंगे वैक्सीन. क्या पता उसका राजपत्र निकाले कि वैक्सीन लगाए. तो वो एक मेडिकल वॉर लड़ी गई, और वो वॉर चाइना को नीचे दिखाने की थी. अब चाइना तो किसी के बाप से दबने वाला नहीं, वो चीज ही और है. तो अब जिसको जो करना वो कर ले. अब हम प्रार्थना करते हैं कि इंडिया की सिचुएशन बेहतर हो, वरना सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं. लोग चाहते हैं, जो बच्चे अभी बैठे देख रहे हैं इनमें, हर एक बिना काम के बैठा है, और जैसे टाइम आएगा और निकाल दिया जाएगा बाहर. हर एक ने बैंक से लोन ले लिया है, हर एक कर्जदार हो गया है. ये कौन सी डिजीज आई? इससे पहले भी आया रेड फ्लू, इससे पहले भी आया क्या नाम से प्लेग. तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इंसान इतना निकम्मा, इतना बेरोजगार हो जाएगा. मुझे अपनी तुम्हारी चिंता नहीं है. मुझे सरकार ने खुद प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन मुझे नौजवान की